Hello, guys. We are back again with another exciting live stream. Today, we are going to be building CLI tools using Go, a programming language that is a real programming language, not unlike JavaScript and Python. That's why I have named myself also as JavaScript beta male because only beta males use JS. Anyways, aside roasting front end developers, let's bring it on to our guest today, who is Mr. Shobit Nagpal. Namaste, namaste everyone. So, please, a quick introduction, sir. Quick introduction. I'm a full stack developer. I'm working at Sapincy right now in Bangalore, although abhi I'm remote. Other than that, in my free time, I program stuff which I find interesting. Go is one of them. I don't program Go, but matlab, I program tools with Go. But basically, that's the gist. Yes. So आज हम वही करने वाले हैं. We are going to try GoLang, and because I also want to try a good programming language apart from C or Java. Java, anyways, बहुत ही verbose हो जाएगा. लिखते लिखते हम लोग public एक static second. void. Java and good? ना. Live stream बंद कर. तो same sentence में डाल के गलती कर दी. तो आज चालू करते हैं GoLang के साथ. एक बार लेआउट में एक बार ट्राई करता हूँ सही से हो जाए. थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम लोग को. यस, एक सेकेंड. यस, तो आज ये 2 लाइव स्ट्रीम्स होने वाली है. ओ सॉरी, आप छुप गए. एक सेकेंड, यहाँ पे रखो. यस, दिस इज गोइंग टू बी अ 2 part live stream. One is learning the basics of GoLang, maybe syntax, loops, getting comfortable in GoLang, and Shobit will be actually helping me out, pair programming kind of thing. Then we will be trying to build stuff in it. So let's begin. पहले बात करते हैं भाई, what is GoLang? What is Go programming language? Already Shobit sir has told us, but yeah, let's begin with it. It's an open source programming language, was developed at Google around 2008, made open source at 2010, launched by it. It is statically typed है, so types definitions जिसको पसंद है, बहुत मजेदार है. कंपाइल लैंग्वेज है, बहुत फास्ट भी रन होती है. डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल्स विल बी रिलीज्ड after you compile the language. We're known for its simplicity, performance, and concurrency. Concurrency, we'll come to that. If you have heard of threads in Java or Rust, you know about spawning multiple processes at same instance. Similar concept is applied at GoLang, which is known as concurrency. Rust Which mentioned by the way. Yeah, Rust mentioned by the way. And GoLang is Go routines developed at Google. Yes. Purpose was to address common issues in software development, because not everything can be boiled down to writing everything in C or C++. So they developed Go as simplified language to improve developer productivity, handle large-scale systems. Primogen mentioned. Primogen mentioned. It is a faster language, faster due to its compilation, and concurrency supports concurrency, multiple task handling, memory management, efficient garbage collection. By the way, garbage collection is there in GoLang. Unlike languages like Rust, they could use a concept known as memory. There is a borrow checker. Anyways, strongly typed to runtime errors. So can you tell me, Shobit, why GoLang is quite easy, man? Can you tell me with your experience? My experience, I do not want to think about the syntax. So GoLang helps me not think about the syntax. It helps me focus on the concept. Other than that, GoLang is the first proper language where I've actually made low-level stuff without worrying about if I mess up something. Okay, you did not shoot yourself in the foot using No, Go. I have, but skill issues, that is. Yes, absolutely. Okay, yeah. Do you agree with this simple syntax? अगर इसको into 100 side में we can put, I'll agree with it more. Okay. Okay, fewer keywords and constructs. Do you agree? You think? Keywords तो I don't know अगर if there's more or less, but मतलब constructs तो yeah, as in it's got like they don't have, like Go doesn't have classes, but it has methods. So those methods operate on structs directly. तो class की जरूरत ही नहीं है. तो मतलब जो to do app बनाएंगे, it will implement these methods and all also. Okay. This obviously, because directly
being executed, means compiled to Go the is faster destination. than Java, by the way. Oh, Hmm. okay. Hmm. Take that legacy code base away from me. Uh, so yeah, this point many have actually commented in Reddit and other things. Built-in tooling, like, is it good in Golang? It As is amazing. coming from JS background, the package management is not that great. NPM, yeah. So how is Golang, man? JavaScript mentioned by Yeah. anyway, trauma की बात नहीं करते. Golang, so basically Golang with the standard library has everything. Like you want to read from the standard in, it has buff.io, IO util करके. If you want to do HTTP backend servers, it has a HTTP. There's there's a version 1, version 2 package. People have made different modules which are public that you can use in your own tools that you make. So it has basically everything. Even I was just searching abhi, if you could access Google Drive through CLI. So Go already Oh, has a package which is written by Google itself to basically do all this stuff. Like they give you methods to talk to Google Drive from the CLI. It has man, everything, Sard. my JS brain can't comprehend. Even my could. Okay, damn. Yeah, let's discuss applications. As guys, you know that my guy is already working in a startup. I guess he would know some applications of Golang or any other, a good language. So let us discuss on cloud computing. Do you work on cloud, by the way? Anyways. I just deployed few instances, but fun fact actually, Google Cloud uses a Go tool to deploy to their VM instances. Oh, oh, Go they use a, mentioned. yeah. Okay, so they are using Golang to deploy like infrastructure as code. No, like there are any scripts for Base deploying हाँ VMs. basically मतलब they had उनका कोई talk था which they said how to deploy any front end framework on the cloud that, like in 5 minutes or whatever. So उसमें from the Google shell itself you basically give it clone the repository and this and that, and you run a command which will take that repository, and then it's like a build tool जैसे मतलब byte और ये सब होता है. Yeah, yeah. It basically detects which framework it is, and then based on the framework, it builds the front end code, and then after that, it does all the assigning to a VM instance, giving it a HTTPS URL, yes, sir. So that tool that they're Oh, using, it's done with Golang. Like they've written it on their end. yeah, this is so close like Vercel. It automatically detects everything. It's an XJS framework. I mean, Vercel, anyways. But yeah, it's cool actually. Yeah, next Web just development. mentioned. Yeah, XJS measurement. Web development. So, have you written backend code in Go? I have. Like, It's torturous. oh, not that Yeah. great. I mean, it's good in terms of performance and all, but the actual writing of the whole backend server, it's a bit, matlab, boring, basically. Oh, like Hmm. it's not like easy like Express as we write in Node. Not No, like it's that. easy. वो तो even JavaScript and Go, it's easy to write, but it's just a bit like JavaScript में even Next.js I can create server actions and all. So I just have to write a function and it does like Next.js handles everything on their end. But Go we have to do a bit more hands-on stuff, which is fun at the start, but when you keep making servers, it gets a bit boring. So there's Okay. different frameworks in Go. I think there's Gochi, there's Gojin, which are basically the Express for Go for backend frameworks. Okay. Okay. Moving on. So next, yeah, DevOps tools. I have written little bit of DevOps, but not that much. But yeah, infrastructure automation, as our guest Mr. Shobit already told us. G what is it? GCP already provides that. Yeah, networking tools. So what all we would cover? Going brief on it. So Golang basic syntax, variables, data types. Then building simple applications. We'll start small, man. Then concurrency, we'll discuss this if we have time because it also is quite complex. Then hands-on demo, we'll do it. Let me bring up my. Wait a second. Let me bring up my. 1 second. Hi, आराम again. से आराम से आराम Uh, से. okay. Let me bring up my thing and okay. Now just give me a second. Yes. So what I have to type first? What do you have to do? Normal to This make a folder where you write Go code basically. Abhi. okay.
So viewers, if you're trying out with us, this is the point where you can actually grab your VS Code or whatever, or notes, whatever you want to write, because from here now coding will start and our instructor will start paid programming with us. So Yeah, so I step one is basically uninstall VS Code and install NeoGAM. Uh, okay, so we will lose our 4 viewership also if you do that. But हाँ, yeah, but basically अभी एक folder बना दो जहाँ पे you make your Go project whatever. okay, let me make Go projects, 3D Go Hmm. projects. Let me go in there. Yeah, I am in my Go projects by the way. ठीक है. So if you're putting all your Go projects इसमें, then you can make a separate folder for now, like where we'll do today's Okay. session का thing. Let me make a live Go one. ठीक है. तो Should I go इसमें in? हाँ, Okay. ठीक है. Now on VS Code you would open this live Go one folder, but like you want to use VS Code या NeoGAM अभी? Bro, Neovim. Come on, man. Okay. Come on. ठीक है. तो अभी What? के लिए मैक में टच का कमांड है क्या? Yeah. हाँ, touch main dot को एक फाइल बना दो. Okay. Man dot go भी. Okay, good session guys. Okay, let me do one thing. Let me open my Neovim and then go it. Yeah. हाँ, So didn't write ठीक है. anything? Punk main nothing. अभी हाँ. So Go का जो ecosystem है, it works on the concept of modules and packages. So Okay. one module in Go is a bunch of packages, and one package in Go is a bunch of files, like Go files basically. Okay. One module set of packages. Hmm. And every package has some files. Go files. One package is a set of Go files which perform some particular task. तो Got it. इसमें जैसे if you're making a to-do app, and we make a to-do package, so one file will be called to-do.app, to-do.go, and then another file would be called utils.go for all utility functions that we write for to-do. Okay. Got it. ठीक है? So now because we're working in a ecosystem where with modules and packages, whatever file we are in, the first line always mentions which package does this file belong to. So starting line would be package main, because this belongs to the main package of the whole project. Okay. Interesting. Okay. Hmm. So So what first should line I- is package main. So I have to write in that thing only. हाँ, नियम में जाके हाँ, either हाँ, package main. Package quotes or what? नहीं, no quotes? quotes, just package main. Just no semicolon, nothing. नहीं, no, thank God no semicolon. Okay. Something context loading, something. No Go format. Files to analyze. अच्छा, LSP Go का है. No, it's Rust analyzer. Sorry, man. I don't know why it's in my SAR Rust mentioned. बट ठीक है, Yeah. अगर चाहे तो Go का LSP भी इंस्टॉल कर सकते हो. I think I have Go LSP. Let's figure it अच्छा. out. Let. Okay. ठीक है. अभी पैकेज में हो गया. दिस डिक्लेयर्स व्हिच पैकेज डज द फाइल बिलोंग टू. ठीक है. इसके नेक्स्ट लाइन पे राइट नाउ वी जस्ट गोना डू अ सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. इसके नेक्स्ट Okay. लाइंस पे वी यूजुअली डू ऑल द इंपोर्ट्स. सो वील राइट इंपोर्ट. Okay. हाँ, इंपोर्ट स्पेस कोट्स में fmt. fmt इज द फॉर्मेट पैकेज फ्रॉम Go का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. Like this? नहीं कोट्स. Oh, sorry. FMT. Okay. ठीक है, ये हो गया. देन आफ्टर दिस वी राइट अ मेन फंक्शन. नाउ बिकॉज दिस इज अ लोअर लेवल लैंग्वेज, इट वर्क्स बेसिकली लाइक C++, where for the compiler there's an entry point, and that entry point is the main function. So the keyword for declaring a Okay. function is function में से शन हटा दिया तो func. Okay, punk. Okay, punk. func main normal जो parenthesis, and then function का body खोल दो. Okay. इसमें now fmt start. Sorry. This is हाँ, I fmt don't dot know. Smaller नहीं वैसे तो वही कर रहे थे. So capital. So this is on the principle of modules and packages, where when we write our own structs and methods, we will also define. So print ऐसे print ln अभी कर दे. Print ln like a method, and under whatever string we want to pass, hello world, hello Go, जो भी. So this is basically from
Go का end, Go का standard library, they would have created some struct or something, and they would have made a println method which takes in a string, and then it will write to the standard out कि this is the string that we've given and this is the what we want to print basically. ठीक है? राइट राइट हाँ. So save the file and क्या कहते हैं? Normal terminal में आ जाते हो. या बता दो एक बार. अच्छा नीचे आ जाना है क्या? ओके WQ. हाँ. इसमें अब there are two things with Go. One is you can make a binary also, but the speciality of Go is कि you can run the code directly without creating a binary. So हाँ, so there is, so if I go help करके command एक चाहे तो run कर लो. नहीं, बस go help. ओके तो इसमें डिफरेंट जो फाइल्स मतलब डिफरेंट जो कमांड्स है गो के साथ जो रन कर सकते हैं वो आते हैं. तो गो बिल्ड जैसा आ गया, वो हमारा पैकेज बिल्ड कर देगा, और फिर गो रन जो है कंपाइल एंड रन गो प्रोग्राम, बट फिर वो बाइनरी नहीं बनाता. गो रन की तरह. अच्छा ये डैम. ओके इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. व्हाट वी वुड डू इज वी वुड राइट गो रन main.go या file.go जो भी है. ऐसे एंड oh yeah got it. Hi YouTube. Hello YouTube. We have 5 viewers by the way. 4 viewers, 1 left like that. Nice. तो इसमें now if you want to build a binary we would write go build main.go. So this will give us a binary, and इसका I think binary का नाम also would be main करके. हाँ. So dot slash So- main. हाँ, perfect. Okay. ठीक है. Now if you want to change the One second, just 1 second. Dad call करे just 1 second. Sorry guys, 1 second. हाँ, आराम से तब तक हाई यूट्यूब क्या चल रहा है. माय गॉड भाई कमेंट्स. हेलो एवरीवन. लोग आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं और कॉल कर देते हैं. सॉरी गाइस. या मैंने कमेंट्स अभी खोले हैं. जीसॉक के लोग आए हैं. हाँ. किसे ब्रो कैट मतलब क्या? ओह अच्छा. we're getting राइट चैट में यही भाई ब्रो स्वागत. ए भगवान. जीरो आइडिया. पाइथन किसने बोला इधर? ओह माय गॉड. अरे शाउट आउट दो. शाउट आउट टू जीसॉक एवरीवन. चलो वाहिद शाश्वत एवरीवन. जैसे सोसी नाइस सार लिनक्स भाई ये लोग सरकार. ओह माय गॉड. सही है गुड एक्टिविटी. गुड एक्टिविटी. तो अभी हाँ. हमने बिल्ड करना सीखा है. सही है. हाँ, बिल्ड का हो गया. अभी बेसिकली विल सी हाउ टू चेंज द आउटपुट फाइल का जो बाइनरी बिल्ड है उसका नाम. सो उसमें गो अपने एंड से दे गिव अ आउटपुट फ्लैग बेसिकली, जिसमें वी विल टेल इट विद व्हाट नेम टू गिव इट. सो वी विल राइट एक तो मेन वाला इफ यू वांट यू कैन रिमूव जो बाइनरी. rm-rf कर दूं. आरएफ तो डायरेक्टरी के लिए होता है, बट चलो ठीक है. ओके. नाइस. तो अब इसमें गो बिल्ड डैश ओ डैश ओ आउट ओ डैश ओ. हाँ हाँ, और इसमें जो भी व्हाटएवर नेम टू डू करके अगर करना है तो. फाइल का नाम दोनों दूं कि नहीं दूं? नहीं अभी नहीं. अभी हम बाइनरी का नाम दे रहे हैं. यूट्यूब कर देता हूँ इसका नाम. हाँ, यूट्यूब. अब फाइल का नाम main.go. अच्छा तो यूट्यूब नाम का बाइनरी फाइल होगा. हाँ. ओह अच्छा. ओह नाइस. आई यूट्यूब. तो हाई ओके यूट्यूब. नाइस. ठीक है. तो अभी बेसिकली अभी क्या ट्राई करेंगे कि बहुत सिंपल सा हम अपने एंड से एक फाइल में जो CLI टूल बनाने वाले हैं उसका एक थोड़ा मतलब प्रीव्यू टाइप करने वाले हैं. आई डोंट नो सार हैज मुस्टैच. थैंक यू मुस्टैच. प्राइमोजन इंस्पिरेशन. He told us. अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको जानता नहीं लेकिन चलो बढ़िया है. आप लोग भले खानदान से लग रहे हो. सही लग रहा है. एक बार लाइव स्ट्रीम भी देख लो, मजा आ जाएगा. एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं. ओके अभी तक हमने कंपाइल करना सीखा. चलो भाई अब क्या डीएस डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करें इसमें. आई मीन बेसिक टाइप सब कुछ. हाँ, बेसिक अभी एक सिंपल सा टू डू का हम करने वाला. मतलब एक ही फाइल में कैसे टू डू ऐप एक सिंपल सा जो बनाते हैं वो ट्राई करता है. अरे बाइनरी खुल गया. हाँ सॉरी यस. ठीक है. तो इसमें क्या कहते हैं, तो गो में जो है उसमें पहली बात कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है. देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप. गो ऑपरेट्स ऑन मतलब यू स्टिल राइट स्ट्रिंग्स एंड ऑल, बट गो ऑपरेट्स ऑन समथिंग कॉल्ड रून्स.
प्रॉब्लम विद कैरेक्टर इज कि इट्स UTF-8 या UTF-16 कुछ है, बट रून्स बेसिकली गिव यू मोर स्कोप ऑफ क्या कहते हैं कौन से कैरेक्टर्स यू वांट टू ऐड और प्रिंट आउट स्टैंडर्ड इन जो भी है। तो एमोजीज वगैरह जो है गो में इट्स इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ रून्स। गो हैज नो कैरेक्टर, जावा तो मतलब कैरेक्टरलेस खुद ही है। कैरेक्टरलेस, अरे भाई ये चलो हाँ सही है। हाँ, तो एनीवे क्या कहते हैं, तो अभी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेवल पे हम देखेंगे कि टू डू ऐप में बनाते कैसे हैं, ठीक है। ओके तो ओके। नॉर्मल उसमें क्या होता है कि हमें एक तो है इनपुट लेने के लिए हमें एक चाहिए होगा, हम्म ठीक है। उस इनपुट को हम किसी क्या कहते हैं एरे या मतलब हैश मैप जो भी यूज, अभी के लिए एरे यूज करेंगे सिंपल सा, उसमें डालना होता है और फिर मतलब एक लिस्ट का ऑप्शन दे देंगे कि क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली टू सी ऑल द टू डूज दैट वी हैव। हाँ, फिर प्रिंट कर दूंगा उसके बाद बस उतना। रेज्यूमे हाँ में बस 5 years एक्सपीरियंस विद गोलैंग, ये भी तो लिखना है 6 भाई। इयर्स कर दे, 6 इयर्स कर दे। यस, अच्छा रुको, यहाँ पे कर देता हूँ 6 years एक्सपीरियंस विद गोलैंग बाय द वे। हाँ ठीक है, तो अभी इस मतलब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बेसिकली जो क्या कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एरेज का, गो में टेक्निकली एरेज जो होते हैं स्टैटिक मतलब क्या कहते हैं फिक्स लेंथ के होते हैं, तो जो डायनामिक एरेज होते हैं उनको हम स्लाइस बोलते हैं गो में, स्लाइसेस, ओके ओके ओके। ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, हम फॉर लूप का एक करेंगे क्योंकि मतलब हम इनपुट कंटिन्यूसली यूजर से लेते रहेंगे और फिर प्रिंटिंग वगैरह का देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर एक क्या कहते हैं एरे स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो हम करेंगे वेयर टू डूज, हाँ देखूं, हाँ वेयर टू डूज स्पेस स्पेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर स्ट्रिंग, अच्छा ऐसा, एस स्मॉल है कि कैपिटल है भाई? स्मॉल स्मॉल स्मॉल। हाँ ठीक है, वार क्रूज। नहीं नहीं बस उसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, डिक्लेयर करना है बस। कॉमा भी सेमीकोलन भी हटा दे। ओके तो सिंटैक्स का पावर इज दिस कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ पाइथन जावास्क्रिप्ट एंड सी या सी प्लस प्लस एक्चुअली। हाँ ओके, ये थोड़ा अजीब लगा कि डेटा टाइप के पहले आ रहे हैं, लेकिन चलो एडजस्ट कर लेंगे। हाँ वो टाइपस्क्रिप्ट में भी वही करना होता है ना, तो ये मतलब ये ज्यादा बढ़िया लग रहा था, लेकिन छोड़ो, उनके पार्सर को लगा कि ये बढ़िया नहीं। वी वो करेंगे आराम से। अभी हमने वेरिएबल एक बनाया टू डूज करके जो बेसिकली हमारा है स्लाइस ऑफ हाँ स्ट्रिंग्स, हाँ हाँ, बढ़िया। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक क्या कहते हैं एक इनपुट लेने के लिए हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे। ओके, स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। सो वेयर इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग, नहीं नहीं हाँ वो इनपुट स्ट्रिंग भी एक्चुअली चलेगा। अब ये हो गया एक तरीका करने का अच्छा वेरिएबल डिक्लेयर। एक शॉर्ट फॉर्म मिलता है हमें जो आई थिंक रैबिट ऑपरेटर या बीवर ऑपरेटर बोलते हैं, पता नहीं क्या, बट अच्छा, बेसिकली इसी वो सेम ना चीज वो को। 2 आंखें हाँ रहती हैं उस ऑपरेटर की। हाँ, और वो दो दांत जो निकलते हैं बेसिकली। तो हाँ उसमें क्या करेंगे, इनपुट मतलब डायरेक्टली वेरिएबल का नाम, अच्छा, हाँ नहीं नहीं मतलब वो पूरा एज इन वैर वाला भी हटा दो। ओह अच्छा, सिर्फ इनपुट का नाम ना, वेरिएबल नाम ना, ठीक है, वार नेम लिख देता हूँ अभी के लिए। वेरिएबल नेम स्पेस और फिर क्या कहते हैं कोलन इज इक्वल टू, अभी के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग में कर दो नॉर्मल कोड्स के साथ। तो अच्छा गो का कंपाइलर अपने एंड से बेसिकली इट विल सी कि एलएचएस में इट्स अ वेरिएबल नेम, अपना बीवर ऑपरेटर या रैबिट ऑपरेटर जो भी है दैट इज देयर, एंड राइट साइड पे बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग तो वो अपने आप फिर कंपाइलेशन में ऑटो फिल कर देगा कि ठीक है दिस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई इट कीप्स क्या कहते हैं गो का जो फिलॉसफी है स्टैटिकली टाइप, हाँ ठीक है। वही अभी वही, हम बेसिकली अब गो में वाइल लूप का कोई सिंटैक्स नहीं है, जो भी अच्छा सिंटैक्स है फॉर लूप्स इट स्टार्ट्स विद फॉर लूप। ओके, पर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। हाँ फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो हम्म, बेसिकली अभी जैसे अगर एक वाइल लूप हमें करना है तो फॉर और सीधा जो क्या कहते हैं हमारे कर्ली ब्रेसेस है वो खोल दो। ओ भाई साहब, ऐसे हाँ करने वाले मतलब ये वाले की कौन सा है?
कर ली जो पहले थे। ओके ओके, यही वाला है, ठीक है, कर हम्म, ली मैंने बेसिस ओपन। ठीक है, अंदर चाहो तो fmt.println कुछ मतलब एफएमटी, भाई मेरा इन्फिनिट एलएसपी लूप। काम है, बड़ा अजीब बात है। अच्छा, एलएसपी के बिना अच्छी प्रैक्टिस होती है। ओके, बेबे, नहीं साठ छोड़ो, 60 किस लाइन में जाएगा 60? सॉरी सॉरी सॉरी, 420 लिख देता हूँ, बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अब ये हो गया। इसको कुछ एरर्स आई डोंट थिंक आएंगे। मतलब खुद ही मैन्युअली एग्जिट करना पड़ेगा प्रोग्राम, क्योंकि अभी इन्फिनिट लूप है, बट वो हो जाएगा। तो ओके, एक बार ये हो गया, इसको मतलब चाहो तो रन कर लो और देख लो कि मतलब लूप में फिर इन्फिनिट लूप ऐसे चल रहा अच्छा, ओ अच्छा, है, इन्फिनिट जस्ट फॉर लूप आने प्रूफ। वाला है भाई, हम भरोसा नहीं है हम पे, हमको इन पे भरोसा नहीं, हम चेक चेक करेंगे। ओ क्या हो गया? अरे कोई, अरे ओह कोई हाँ, बात गुड। नहीं, नहीं नहीं नहीं, दो अच्छा रन। अच्छा, अभी चेंज करने पड़ेंगे हमें चीजें। अरे एक बार क्या एरर्स पढ़। ये करने देगा मेरे को? हाँ ये तो नहीं नहीं डिक्लेयर नहीं, नॉट, हाँ अरे भाई हाँ प्रिंट कर दूंगा। तो हाँ, चाहो तो प्रिंट कर दो या फिर अभी के लिए कमेंट कर दो। तो गो कंपाइलर का ये या फिर रन टाइम जो है यही है कि अगर कोई चीज डिक्लेयर करे और यूज नहीं करे तो एरर फेंक दो। अच्छा, ओ भाई साहब, एरर तो ही फेंक दो डायरेक्ट। क्योंकि फिर अब गो जब कंपाइल करके बाइनरी मिलता है, वो हम्म, अपने एंड से गो रन टाइम करके ऐड करता है। गो रन टाइम मतलब एक फैंसी वर्ड है, अपने एंड से एक्स्ट्रा कोड डालना, जो बेसिकली गार्बेज कलेक्शन करता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, समझा समझा। ठीक है, तो अगर अपने तो एंड से गार्बेज कलेक्शन कर रहा है और अगर ऐसा वेरिएबल है जो यूज ही नहीं हो रहा, तो पहले ही कंपाइल करने से पहले हटा दो। अच्छा अच्छा, हम्म, ओके 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 राइट। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। 420 बहुत बार अपडेट हो गया है, आई थिंक आपने सही बोला था, इनफाइनाइट लूप ही है। हाँ आगे ठीक है, बढ़ते हुए। इनफाइनाइट लूप हो गया। अब हम्म, बेसिकली इसी इनफाइनाइट लूप में हम यूजर का जो क्या कहते हैं इनपुट है वो लेंगे, और बेस्ड ऑन कौन सा इनपुट डाला है हम टू डूज में या तो प्रिंट करेंगे या फिर ऐड करेंगे। समझ गया, चलो वो करते ठीक है, बेसिकली अब इनपुट का वेरिएबल बना दिया। अब बेसिक फॉर्मेटिंग से हम करेंगे कि ऑप्शंस देंगे यूजर को कि ऐड टास्क के लिए कौन सा नंबर दबाना है या फिर प्रिंट के लिए कौन सा नंबर दबाना है। तो नॉर्मल एफ एम टी प्रिंट एल के हेल्प से हम करेंगे, ऑप्शंस दे देंगे हम जो डिसाइड करेंगे कि प्रेस 1 हैं। फॉर एडिंग, प्रेस 2 फॉर लिस्टिंग, प्रेस 3 फॉर एग्जिट। ओके ओके, चलो ऐड कर करते दो। हैं ये। तो कैसे करेंगे उसको? परफेक्ट, एफ एम टी प्रिंट एल में ही मतलब। ओह अच्छा, प्रिंट एलन करना है। ओह रुको रुको, मैं विम यूजर हूँ ना, रुको मेरे को फास्ट होना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, समझ गया भाई। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया इसमें। हाँ, हाँ, इसमें क्या करना है? वन, ओ इतने सारे प्रिंट प्रिंट एलन क्यों डाल दिए मैंने? भाई तो मैं कह रहा था। अरे यार, रुको, यूटिलिटी थी नहीं, फ्लेक्स करने के लिए डाल दिया सब कुछ। और हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू, अबे भाई नहीं, रुक जाओ, हाँ समझ गया। आराम से कोई जल्दी हाँ नहीं। ठीक है, वन दबाएं, दबाएं, हाँ, प्रेस 1 आगे फॉर एडिंग टास्क, प्रेस 2 फॉर प्रिंटिंग टास्क, चलो, प्रेस 3 फॉर क्विटिंग द टू प्रोग्राम। फॉर प्रिंटिंग, थ्री फॉर एग्जिट। ठीक है, बैक स्लैश एन भी हो गया, ठीक है सही है। तो ठीक है, अच्छा, अब अगर ऐसे करना है तो प्रिंट एलन की जगह प्रिंट एफ कर दो। प्रिंट, ओ ये ऐसा वाला। हाँ, प्रिंट एफ बेसिकली जो एफ है वो फॉर्मेट के लिए स्टैंड करेगा। प्रिंट एलन डायरेक्टली प्रिंट करके नया लाइन करेगा कर्सर को। प्रिंट एफ में हमें फॉर्मेटिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर हम बैक स्लैश एन वगैरह यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम। फ्लेक्स मारनी पड़ती है भाई, विम यूजर है यार, आई मीन नियो विम जो भी है, उतनी आती नहीं हाँ, लेकिन वैसे क्या तो है भाई, काफी ट्राई। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अभी, मतलब मेरे को थोड़ा आधा अधूरा लग रहा है। व्यूअर्स को देख के समझ आ ही रहा होगा कितना कितना क्या कहते हैं, जूनियर डेवलपर हूँ भाई मैं, प्रिंट। चलो ओके, हाँ आगे बढ़ते हुए। जी, हाँ, ठीक है, तो प्रिंटफ हो गया। अभी इसके बाद बेसिकली हम उनसे यूजर से अपना इनपुट मांगेंगे। तो ओह इसे अच्छा, कैसे करेंगे? एफ में ही जो है एक स्कैन का ऑप्शन आता है। तो सी प्लस प्लस में जैसे हमारा था कि डायरेक्टली वेरिएबल में हम वैल्यू डाल देंगे, हाँ, तो वैसे ही स्कैन मेथड हमारा पॉइंटर लेगा, क्या कहते हैं, जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसको एस कैपिटल इसमें। अच्छा अच्छा सब भाई, ठीक है, सह लूंगा थोड़ा मैं। हम्म इनपुट इनपुट कर देता हूँ इसको। हम्म, अभी ओह सॉरी, आराम रुक से जाओ, आराम से। यस हाँ। क्या करें, हाँ, इसका नाम कुछ रख दें?
इनपुट। इनपुट रख देता हूँ। और ये अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर, अच्छा ये चलेगा ना ऐसे इनपुट रखने से, ओवरराइट कर देगा ना वैल्यू? हाँ हाँ हाँ। चलो बढ़िया है। नहीं करेंगे तो हम कुछ फिक्स निकाल देंगे। हाँ हाँ, वो बात भी। सो हम्म, स्कैन इनपुट मतलब वहां पे ये सही सिंटैक्स है मतलब? हाँ पॉइंटर टू हो गया और वो लास्ट में सेमीकोलन हटा दो। गो में आई डोंट थिंक सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट है। अगर रख दूंगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ट्राई करके देख लो क्या होता है। छोड़ो भाई, अब भाई डर लग रहा है मेरे को, छोड़। क्यों भी? भाई एरर नहीं हाँ, देखने हैं। यस, तो ओके। ये हमारा जो इनपुट है ये बेसिकली ये है कि 1 फॉर एडिंग टास्क, 2 फॉर प्रिंटिंग, 3 फॉर एग्जिटिंग वाला है। सही सही। ठीक है। अब इसके थ्रू हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यूजर ने जो प्रेस करा उसके अकॉर्डिंग कौन सा केस हम हैंडल करें। तो इसमें आ गया हम्म। हमारा क्या कहते हैं, स्विच लूप या स्विच केस जो भी है। स्विच। तो अच्छा। अब इसमें गो में अगर जैसे और करेंगे एक जनरल मतलब रूल। पैटर्न देगा कि हाँ जनरल पैटर्न, जनरल रूल अकॉर्डिंग जो भी कंपाइलर के सिंटैक्स वाइज ब्रैकेट्स बहुत कम यूज करे हैं फॉर लूप में या स्विच लूप में ऐसे करके। तो हम्म नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्विच के बाद वी पुट लाइक अ पैरेंथेसिस या ब्रैकेट। इस केस हाँ। में वी डोंट हैव दैट। हम्म। तो स्विच इनपुट और सीधा स्विच की बॉडी खोल दो। ओके ओके, समझा। हम्म स्विच इनपुट लिखना है क्योंकि हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और इसकी बॉडी अभी खोलनी है। अभी चाहो तो एक डिफॉल्ट केस बना दो जिसमें हम प्रोग्राम को एग्जिट ही कर रहे हैं। अच्छा, वो कैसे बनाए इसमें? केसेस कैसे बनाते हैं? मैं स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं करता। वैसे अच्छा सब समझ रहा हूँ मैं। क्यों नहीं कर अरे रहे यूज? इफ हाँ, एल्स लाइक कैटेगरिकल हो गया। नहीं नहीं नहीं, स्विच यूज करो। अगर 3 से ज्यादा मतलब इफ एल्स इफ को अगर ब्रेक हो रहा है तो स्विच केस यूज करना आता है इन जनरल। अच्छा, मतलब मैंने अपने दिमाग में ऐसा करा हुआ है। भाई सीनियर इंजीनियर्स ऐसे ही बनते हैं, फिर हम ऐसे ही। अभी अभी कहाँ सीनियर है अभी तो। अभी स्टार्ट हुआ हाँ बोलोगे। चलो भाई, केस हाँ, केस तो ऐसे अभी लिखते हो केस क्या? की जगह, हाँ केस में चाहता है ऐसे लिख सकते हैं बट अभी एक बस डिफॉल्ट केस करे जिसमें प्रोग्राम खुद ही एग्जिट हो रहा है। तो अच्छा, जो डिफॉल्ट केस है उसमें डिफॉल्ट का कीवर्ड लिख के अंदर जो हमें करना है रिटर्न कर दो उधर से डायरेक्टली। सीधे रिटर्न मार दूं ऐसे? डिफॉल्ट कोलन और फिर नेक्स्ट लाइन पे अच्छा, और कोलन कोलन। कोलन मार दिया अब मैंने। डिफॉल्ट में अब वो राइट वाइट स्पेस की जरूरत नहीं है। रिटर्न। मतलब ये जो डिफॉल्ट के बाद एक्स्ट्रा स्पेस है उसकी जरूरत नहीं है। ये हाँ डिफॉल्ट, हाँ परफेक्ट। तो इसमें रिटर्न कर दो डायरेक्टली। रिटर्न लिखूं क्या मैं इधर? हाँ। ओके। अब तो अब इसको बस एक बार चला के देखते हैं। अच्छा, ओके। गो रन मेन डॉट गो। हाँ, क्या करना है अब मेरे को? अच्छा, अरे यार सॉरी, मेरे को एग्जिट ही करना पड़ेगा। कर सकते हैं ऐसे, एक्चुअली मैंने देखा है कि नियोगन हम्म, में तो टर्मिनल ही पूरा खोल सकते हैं। वही। क्या करना है अभी हमको? कुछ भी नंबर दबा डाल दूं? दो अपना अब fmt डॉट स्कैन वाला आ रहा है ना। हाँ। अच्छा, एग्जिट हो गया, ठीक है प्रोग्राम अब चल रहा है बढ़िया। चलो। अब इससे पहले एक बार वो भी देख लेंगे कि जो हमने इनपुट डाला है वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है। हम्म तब तक देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चल क्या रहा है, चैट में चल क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा कुछ नहीं चल रहा। आप सैड मत होइए बेबी गर्ल, कोई जो भी है, आई मीन बेबी गेमर जो भी। भाई भाई सिम। आराम से। ओके, तो अभी केसेस लिखते हैं। हाँ तो ठीक है, डिफॉल्ट केस हो गया। अभी हम बेसिकली जो एक्चुअल केसेस है वो डिफॉल्ट सबसे यूजुअली लास्ट में आता है। ठीक है। हम्म। ठीक है, ओ तो अच्छा। इससे पहले जो ऊपर है उसमें हम हाँ केस लिखेंगे तो केस 1 केस 2 केस 3 क्योंकि हमने ये 3 ही केस दिए हुए हैं। हाँ तो हाँ। अब क्योंकि जो इनपुट का टाइप है वो स्ट्रिंग है तो हम केस में भी वो टाइप देंगे या फिर वो वैल्यू देंगे जिसपे हमें मैच कराना है। हाँ, बात तो सही, बात तो सही। चलो, तो केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे करके ऐसे करके। स्ट्रिंग्स में लेकिन। ओ ओके ओके, हम्म, ओ इनपुट स्ट्रिंग तो लेता है। 1 स्ट्रिंग में होगा तो अगर कल को इंटीजर यूज करें तो हम उसमें इंटीजर डाल देंगे। गॉट इट गॉट इट। हम्म, ठीक है केस 1। अब गो में स्विच केसेस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि गो अपने एंड से ब्रेक खुद ही कर देता है। अरे भाई, देवता लैंग्वेज है, सही है।
क्योंकि फिर बार बार जब हर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ब्रेक 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 करके लिख रहे हैं तो गो ने बोला यूजलेस ब्रदर, निकाल दो इसे, हम अपने एंड से कर देंगे इंटरनली। ठीक है, तो अभी इसमें वन है फॉर एडिंग टास्क। अभी के लिए बस प्रिंट कर दो वी हैव टू ऐड टास्क हियर करके, वो हम आराम से कर देंगे। ओके सो आई एम गोना राइट, तो अंग्रेजी में आ जाता हूँ, इंटरनेशनल ऑडियंस देखेगी बाद में। Oh sorry, प्राइमरी ऑफ because कोर्स। yeah. So what should we write here? One was, टास्क हियर, हाँ वन वाज फॉर प्रिंटिंग एडिंग जो भी। let me ये make हो गया other. केस 2 परफेक्ट। Okay, fmt dot println and 2 was pressed. Okay, default. Okay, 3 exit करने के लिए either we can write another case or default. केस 3 लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन डिफॉल्ट में रिटर्न हो रहा है तो वी कैन कीप इट वैसे, केस 3 की ऐसा जरूरत नहीं है। हाँ ओके, let's omit it. Okay, got it. तो अब बस चेक करेंगे 1 या 2 पे जो भी प्रेस करेंगे अगर ये चल रहा है कि नहीं, वैसे तो चलेगा बट गुड टू सी विद आईज प्रूफ। So exit. Okay, yeah. और बाय द वे इसने बहुत ही गंदा कमेंट किया है, बहुत इंसल्टिंग कमेंट किया, बोला है कि आपको पाइथन सिखाना चाहिए नेक्स्ट। शोबे टीच पाइथन नेक्स्ट। बैन का ऑप्शन है क्या चैट में? चैट में बैन कर दिया जाएगा, ऐसी अपमानजनक बातें मत करें। पाइथन और जावास्क्रिप्ट वाले प्लीज, अगर आप ये स्ट्रीम देख रहे हैं माफ कर दीजिए। आप ऐसे देखिए, आप कुछ और कह सकते हैं, गाली दे दीजिए, लेकिन पाइथन का नाम मत लीजिए। सॉरी, लेट्स टाइप 1। अरे मैं मजाक नहीं कर सकता, तो बैन कर दो उसको। ओ भाई, क्या सच में बैन कर? नहीं मजाक भाई जावा, अरे जावा फैन है। अरे स्वाति जी, हम भी जावा फैन है। जावा शोभित भाई, अपने आप को कैसे बैन कर, मेरे को बैन कर दे भाई जावा पाइथन से यार बेटर है भाई। सार टी जावा नेक्स्ट टाइम सार। ठीक है। अरे यार गेस्ट पहली बार आए हैं, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। वेरी बैड चैट। हाँ, this works. We just tested, यहाँ पे लिखा था 2 was pressed, 1 was pressed, nice. 1 was pressed, ठीक है बढ़िया। अभी 1 was for adding, 2 was for printing ना, तो अभी इजी वाला केस हैंडल करते हैं, जो सेकंड वाला है कि हमें प्रिंट कराने सारे टास्क। तो हम नॉर्मल चेक करेंगे कि अगर टू डूज का जो लेंथ है, जो हमारा स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग्स है, अगर वो 0 है क्या गया? ये चैट में भाई, ये देखो, शर्म करो, जावा एक्सेप्ट कर लिया। किसने जावा एक्सेप्ट कर लिया? किसी ने नहीं किया। अरे वो मैं था। ये फिर से आ गए, ये देखो, ये पाइथन वाले फिर से आ गए। भाई पता है क्या बताऊं, मैं मैगी बना लेता हूँ, तुम्हारा कोड तब जाके इंटरप्रेट होता है भाई। भाई ये ज्यादा ही सैवेज हो गया मैं भाई। मैगी फास्ट है पाइथन से, मैगी फास्ट है भाई। ये ट्विटर पे लिखूंगा मैं। मत लिख, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। एनीवे, ट्विटर के लोग पाइथन को ज्यादा पसंद करते हैं। अरे हाँ भाई, ट्विटर तो। एनीवे, मूविंग ऑन। हाँ, सेकंड वाला प्रिंटिंग है। इसमें हम बेसिकली चेक करेंगे कि इफ हमारा टू डूज का जो लेंथ है वो 0 है तो प्रिंट कर दो नो टास्क हैव बीन एडेड, एल्स जो है हमारा एक्चुअल प्रिंटिंग का है वो करेंगे। ओके मैं थोड़े कंडीशंस बना लेता हूं। लेट्स मेक सम कंडीशंस। ठीक है। इफ में भाई नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, इफ को हम पैरेंथेसिस में डालते हैं जो हमारा कंडीशन है इसमें, लेकिन अगर पैरेंथेसिस को स्टेटमेंट्स में जनरल पैटर्न है कि मत ही डालो, तो हम इसमें लिखेंगे इफ टू डूज डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू नहीं 2 होंगे, बिकॉज GoLang नॉट जावास्क्रिप्ट। इसमें कर देंगे नो टास्क और बस खत्म। ओके, नो टास्क, तो हम सीधे फॉर्मेट और प्रिंट कर लेते हैं ना इसमें। हाँ, let's print here. What should we print? No tasks at hand. At hand. Okay, got it. ठीक है। else अब हम इसमें क्या कहते हैं, अब क्योंकि हमारा स्लाइस है, स्लाइस को यूजुअली मैं एरे की तरह ही सोचता हूँ, तो एरे में बेसिकली लूप थ्रू करना पड़ेंगे सारे टास्क से, है ना। तो इसमें हम करेंगे फॉर लूप नॉर्मल जो हमारा होता है, और इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है क्योंकि ये वही मतलब पाइथन जावास्क्रिप्ट इधर उधर से थोड़ा इंस्पायर्ड सिंटैक्स है। तो हम लिखेंगे फॉर। अब एक काम करते हैं,
अंडरस्कोर कॉमा अंडरस्कोर कर ले पहले। ओके, फिर हमारा रैबिट ऑपरेटर, बीवर ऑपरेटर, जो भी, रेंज टू डूज। रेंज ऑफ टू डूज। हाँ, लेकिन वो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, रेंज स्पेस टू डूज। अच्छा, तो बेसिकली रेंज हमारा अपने एंड से आइटरेट खुद करता है और रेंज हमें दो वैल्यूज रिटर्न करता है। तो दो पहला वैल्यू वैल्यू जो हमारा था, पर नहीं नहीं वैल्यू। की वैल्यू नहीं, हमारा इंडेक्स और वैल्यू रिटर्न करेगा। आज ओ भाई साहब, रश जैसा ही है ये तो। हम्म तो इसमें पहला जो हमारा वेरिएबल है, पहला अंडरस्कोर, उसमें आईडीएक्स करके लिख दो या फिर आई, जो भी मतलब तुम लिखते हो इंडेक्स के लिए। हाँ, और नेक्स्ट वैल्यू होगा हमारा टू डू एक्चुअल जो है। ये रेफरेंस है कि बाय वैल्यू ही देता है? ये मतलब ये तो ऐसे वैल्यू देता है, ये वैल्यू देता है। अच्छा, रेंज वाला जो ऐसे हमें वैल्यू देता है, अगर इसमें कुछ चेंज। हाँ, इसमें क्या रेफरेंस मिलता है? रश में थोड़ा डाउट है। नहीं, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब हम साइकोपाथ्स नहीं है तो हम गो करते हैं। लेजेंडरी, नाइस, कूल। हाँ, तो ओके ओके। इसमें बेसिकली जब हम रेंज के थ्रू अंदर जा रहे हैं तो हमें पास बाय वैल्यू मिलता है, लेकिन अगर कभी भी पास बाय रेफरेंस करना है तो हम गो में पॉइंटर्स वगैरह के थ्रू करेंगे। वो भी जो हम CLI एक्चुअली टूल बनाएंगे टू डू का, उसमें मतलब हम करेंगे। या फाइनली हम्म, बेटर। ओके, तो इसमें fmt.println टू डू, या फिर प्रिंटर। एक्चुअली क्या करते हैं, अब प्रिंट एफ कर लो और इंडेक्स के साथ फिर मतलब वो कर दो, टू डू को ऐसा प्रिंट। करता होता है क्या? हाँ, ये कर सकते हो। शुरू, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। रुको, आई थिंक यही सही है। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। ओके, एक्सिक्यूट बढ़िया। करना है क्या? नहीं नहीं, अभी तो हमारे स्टूडियो में कुछ है ही नहीं। नहीं, अभी मतलब ये प्रिंट करके फिर खुद ही यूजर से वापस इनपुट मांगने लग जाएगा, ये ऐसी चीज है। ओह, हम्म ओके। तो अभी हम नॉर्मल प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं, बट कल को जब हम CLI टूल बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा कि मतलब टू डू ऐड, मतलब जैसे नॉर्मल CLI में कमांड्स होते हैं, हम इसमें टू डू ऐड फिर एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, वो खुद ही फिर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा किसी जेसन फाइल में, और लिस्ट करने पे उसी जेसन फाइल से रीड करके हम प्रिंट करा देंगे। समझ गया समझ गया। ओके। हम्म, तो अभी बढ़िया। क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा केस 2, तो इसको एक बार मतलब रन करके देख लेते हैं। 2 प्रेस करने पे नो टास्क एट हैंड आना चाहिए। ठीक है, सॉरी। नाइस। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, एरर्स आर गुड जब सॉल्व हो सकता है। लास्ट में वो स्टार। हाँ, हुआ क्या? बेसिकली एल्स को मतलब सेम लाइन पे ला दो चाहो तो। और क्या है, नहीं मतलब इफ का जो एंडिंग वाला कर्ली ब्रेसेस है उसकी सेम लाइन पे एल्स को ला दो। ओह, अच्छा। थोड़ा उसका गो का फॉर्मेटिंग थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट है। क्या हो गया? हम्म अब क्या आ रहा है, टू डूज डॉट लेंथ अनडिफाइंड। एक बार अपने हमारे स्क्रीन को ऊपर या नीचे कर सकता है क्या? एक सेकेंड, क्या करना है हम लोग? हम्म, हमारे स्क्रीन को कर दूं? हाँ परफेक्ट। वो फिर एरर नहीं दिख रहा था मेरे को। हम्म अब एरर क्या आ रहा है? तो टू डूज का स्ट्रिंग है हम्म और का लेंथ 0 है, तो हमें प्रिंट करना है ना फॉर्मेट। हम्म और एल्स में देख लेंगे हम लोग, अगर चाहिए होगा हम्म तो हम्म इनपुट भी सही है, फॉर लूप का ये भी सही है। ओ फॉर, ओ सॉरी, ये जो फॉर लूप था एंडिंग ब्रेस की। भाई आप ना 2 सेकंड ऐसे ही रुकना, मेरे को VS कोड में ओपन करना पड़ेगा। डोंट डोंट साठ डोंट साठ बिट्रियल। आराम से कोई। अच्छा, बेसिकली आई थिंक ऑपरेशन प्रिंट उसके साथ नहीं कर सकते। ओ परफेक्ट, एक्चुअली फिर प्रिंटफ का हम पावर दिखा सकते हैं। अच्छा, नहीं इसमें क्या है? अनडिफाइंड हैज नो फील्ड और मेथड लेंथ। हाँ, ऐसा कुछ बोल रहा है। आई थिंक अनइनिशियलाइज्ड इसलिए शायद से। ठीक है, तो इसके टूडूज दो तरीके हैं। डिफाइंड क्यों आ रहा है लेकिन? वही करेंगे अभी। आई थिंक वैर या उसमें करा है। तो इसका एक और ऑप्शन है जिसमें हम स्लाइस का जो है वो कर सकते हैं। बाय द वे, फर्स्ट ट्राई नहीं माना जाएगा, जस्ट से। या ये ट्रायल बॉल थी है, ट्रायल हाँ, बॉल। ट्रायल वाल इज -1। तो इसमें जहाँ पे हम टू डूज डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका एक और तरीका दिखाता हूँ जो एक्चुअल मतलब कोड बेसिस में यूज करते हैं। हाँ हाँ,
सही सही। So what should I actually do now? अभी जो जहाँ पे हम टू डूज डिक्लेयर करें वो वाले लाइन पे एक बार जाना। हाँ ओके। अब इसमें हम टू डूज का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करेंगे, मतलब इस पूरे लाइन को हटा दो। हटा दो इस लाइन को। हटा दो। हाँ, अब इसमें लिखेंगे टू डूज, अपना बीवर जो ऑपरेटर है, इज इक्वल टू मेक करके एक फंक्शन देता है गो अपने एंड से, जहाँ पे हाँ हम जो भी डेटा टाइप उसमें पास करते हैं वो हमें बना के दे देता है। सो मेक, और नॉर्मल मेक जो फंक्शन है, स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब वो एज इन, बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, क्या ये मेक हाँ, मतलब ये ये। मेक गो से अपने एंड से एक फंक्शन देता है जिसमें हम कोई भी डेटा टाइप बना सकते हैं और उसको अच्छा। वेरिएबल में वैल्यू में पुट कर सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, अब तो मेक इसमें करके। करेंगे, हाँ, मेक करके जो हमने स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग्स का जो टाइप दिया था वो देना है इसमें। ओके तो ऐसा। हाँ, अब इसमें एक ऑप्शन, इस फंक्शन में एक ऑप्शन और है, ये मतलब थोड़ा ज्यादा इंटरनल हो रहा है, बट इसमें इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। एक में कैपेसिटी करके आ जाता है कि कितना कैपेसिटी ले सकता है, और एक में कितना लेंथ ले सकता है। तो अभी उसको डालने की जरूरत नहीं, वो मतलब बहुत ही अगर मेमोरी से के साथ डील करे तब यूजुअली हम यूज करते हैं। ओके ओके ठीक है, ये हो गया। अब इस हिसाब से एक एरर चले जाना चाहिए, ओके। होपफुली। हाँ एक कह रहे तो चला गया। इनवैलिड ऑपरेशन एक्सपेक्ट्स 2 और 3 आर्ग्यूमेंट्स, फाउंड वन। लो भाई, लेंथ और सॉरी कैपेसिटी का आ गया। लेंथ और कैपेसिटी का। हम्म, तो इसमें वही, जीरो कर दो अभी के लिए। आई थिंक लेंथ अभी जीरो दे सकते हो। यहाँ पे। मेक जो भी हमारा स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग, और फिर जीरो जो हमारा लेंथ है। कॉमा। आई होप अभी ये सही है मेरे को। भाई देख लो इज्जत लाइन पे अब टेक्स्ट मैं करने। देख, माई एक्सक्यूजेस कि मैं गो फ्री टाइम में करता हूँ। ओह फाइंड आ रहा है। अच्छा मैं हाँ। एक बार टेस्ट करता हूँ, इसको उसको कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। एक हम्म, बार इसको अपने एक बार एनालाइजर पे डालता हूँ। कौन सा एनालाइजर? अरे मेरे पास वीएस। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं सुना। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। जस्ट एक सेकंड। जो प्रिंट वाला है वो एक एरर तो एलन की जगह हम प्रिंट एफ के साथ कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। या इसको कॉपी कर लेता हूँ। बाय द वे जितने लोग who are all trying with us, I hope you are all trying with us, but yeah it's nice interesting। शेम शेम मत बोलिए, आता नहीं है मेरे को, ट्राई किया जाए, ठीक है। वी ट्राई, वी ट्राई। ओके। अच्छा मेरे को एक कमांड मिला है which says this is not the correct thing। मैं थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ रहा था भाई, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। चलो वो भी कर सकते हैं। ओह, मैं जावास्क्रिप्ट सोच रहा था। ब्रो, नेवर माइंड। भाई फेक गो डेवलपर। आप फिर क्या बोलते हैं हाँ आप ऐसी हरकतें करोगे तो बस सर, तुम। मैं स्ट्रीम से पहले मैं जावास्क्रिप्ट ही कोड कर रहा था तो। टू डू प्लस मिसमैच टाइप आ रहा है तो हाँ, वो मैं सॉर्ट कर देता है। उसमें ओके प्रिंट यहाँ। एलन की जगह प्रिंट एफ से हम करने वाले हैं, और इसमें जो परसेंटेज एस वाला होता है सी में, वैसे हम करेंगे। भाई यहाँ पे ना एक एक सिंटैक्स दिया है मेरे को, ये स्ट्रिंग कन्वर्जन करके लिखने बोला। ओ भाई भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसमें एसटीआर कॉन्विग पैकेज वगैरह करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं, अच्छा। डिलीट ही कर दे पूरा लाइन। ओके तो नहीं, फिर पूरा ये लाइन ही डिलीट कर दे। ओ अच्छा ओके। हम अब सी के प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ। fm रुको fmt डॉट प्रिंट एफ ओ फॉर, अरे यार फॉर्मेट करना चाहिए था ना मेरे को। हाँ, टू डू। अभी इसके बाद अगर नंबर प्रेस करना है तो आई थिंक परसेंटेज डी है। तो टू डू, नहीं नहीं, प्लस प्लस की जरूरत नहीं इसमें, हम डायरेक्टली इसमें जो हमें प्रिंट कराना है वो हम कराएंगे और ऐसे प्लेस होल्डर के साथ कराएंगे। तो टू डू, ओके गुड गुड। हाँ,
और क्या कहते हैं कोलन अगर कुछ लगाना है और उसके बाद परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए। तो कॉमा, हाँ, आई कॉमा सिर्फ आई लिख दो ना टू यहाँ डू, पे। हाँ टू डू, अब हो जाना चाहिए। टू फॉर थैंक टी। गॉड, इज्जत बच गई। अरे भाई लड्डू बांटो यार मोहल्ले में, कंपाइल हम्म, हो गया। हाँ, अब मतलब चल रहा है ना बेसिकली हमारा नो टू डूज पे आना चाहिए। सही है सही है सही है। हाँ नो टू डिस पे आया था। ठीक है, अब हम ऐड करना कर सकते हैं वैसे भी। इट्स अराउंड 50 मिनट्स। आई थिंक वी कैन रैप इट अप यूजिंग दिस केस वन। हम्म, लेट्स ऐड टू डिस नाउ। ठीक है। अब बेसिकली हमें पहले देखना होगा कि कौन सा टू डू इनपुट लेना है। तो हम एक और वे टू डू का एक वेरिएबल बना सकते हैं या टू डू इनपुट जो भी नाम देना है, जिसमें हम यूजर से उनका इनपुट लेंगे और सेम जो स्कैन वाला अप्रोच है वो करेंगे कि हम तुम अपना टू डू का लिस्ट बताओ क्या है, वो मतलब जो भी टू डू का टास्क है उसको हम डाल के लेके इसमें डाल देंगे टू डूज के ओके, स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग्स में। तो ठीक है, वार इनपुट इक्वल टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। वार इनपुट इनपुट टेक्स्ट। ऑलरेडी लेकिन डिक्लेयर्ड है। हम्म, वार इनपुट टेक्स्ट कर दूँ। वो भी चलेगा, इसके बाद ठीक है। स्ट्रिंग डालना पड़ेगा। हाँ तो एक एक काम करता हूँ, क्योंकि हमने वन दबाया है। सो हम्म, मेरे मेरे पास एक आइडिया है। लेट मी प्रिंट हम्म, एलन बैक स्लैश एन, थोड़ा एक स्पेस देते हैं। उसके बाद बस तो वेट। प्रिंट एलन ही सीधा प्रिंट कर दे तो हो जाएगा। अरे हाँ, अरे ये बता, प्रिंट एलन का मतलब ही वही होता है। एंटर द टू नेम। तो हम्म, ठीक है, हमने ऐसा कर दिया है। अब वार इनपुट टेक्स्ट एंड देन fmt डॉट स्कैन करना है ना हमको। आई थिंक fmt हम्म, डॉट, भाई fmt डॉट स्कैन हम्म, एट इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। वो उसका सिंटैक्स बस थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा एक बार। किधर किधर इधर। बेसिकली जो हमारा वो है क्या कहते हैं वैर इनपुट टेक्स्ट वाला, उसके बाद अगर दो तरीके बेसिकली वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के, एक तो वैर वाला वेरिएबल यूज कीवर्ड यूज करके, और दूसरा जो हमारा बीवर ऑपरेटर है वो यूज करके। हम्म। ठीक है, तो ये अगर सही हम है। वैर वाला अप्रोच, हाँ यूजुअली ये बेटर मतलब अप्रोच माना जाता है। ठीक ऐसा है तो भाई। कोई ओपिनियन नहीं है, बट जिस डेवलपर के लिए इजी है, लोगों के लिए इजी है समझने का। तो इनपुट टेक्स्ट एक वो कर दिया। अगर हम वैर वाला अप्रोच यूज करें तो वैर वेरिएबल नेम और फिर जो टाइप है वेरिएबल का। हम्म, और गॉट। जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं बट इनिशियलाइज नहीं करते, उनका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो जीरो होता है। अच्छा। ये गो के अपने तरफ से रूल है। जैसे अगर ओके। इंटीजर कोई मैंने डिक्लेयर करे बट इनिशियलाइज नहीं करा है, तो हम्म उसकी जीरो वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बट अगर हम सी या किसी में करें तो उसकी गार्बेज वैल्यू कुछ दे देता है ना, कुछ रैंडम सा नंबर। हम्म। तो गो तो का ये है कि मतलब जीरो वैल्यू दे दो अगर इनिशियलाइज नहीं करा वैल्यू। अब ये हो गया। ठीक हमने इनपुट ले लिया, इनपुट टेक्स्ट में हमने अपना इनपुट का ले लिया। अब किसी भी स्लाइस में या किसी भी एरे में, अगर एरे तो वैसे नहीं अपेंड कर सकते, बट अगर किसी है। भी स्लाइस में अपेंड करना है तो गो हम्म अपने एंड से जैसे मेक फंक्शन दिया था वैसे एक अपेंड का फंक्शन देता है। हम्म। हम्म, तो हम तो लिखेंगे टू हाँ, डूज इज इक्वल टू टू डूज इज इक्वल टू अपेंड, अपेंड। फिर मतलब नॉर्मल जैसे हमारा फंक्शन कॉल है, हाँ, इसमें हम डालेंगे टू डूज कॉमा इनपुट टेक्स्ट। टू डूज कॉमा इनपुट टेक्स्ट। अब ये बेसिकली क्या करता है अपेंड फंक्शन, जिस स्लाइस में हमें अपेंड करना है वो हमें लेना है, और क्या अपेंड करना है वो लेना है, और हम इसको वापस रिलेशनलाइज कर रहे हैं टू डूज वाला जो हमारा वेरिएबल है। गॉट इट गॉट इट। हम्म, रन करें क्या? देखो एक काम करते हैं, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं फिर से। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे जाके हम्म, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। आई थिंक दिस वर्क्स। सर आपका न्यूगन कॉन्फ़िग थोड़ा करना पड़ेगा ठीक। सही नहीं है क्या? नहीं मतलब बहुत सारी चीजें मैं चेंज करता अगर मैं यूज कर रहा होता। अच्छा, स्लो है क्या? नहीं नहीं, वो तो टाइम के साथ आ जाएगा, अभी तो स्टार्ट ही करा है न्यूगन थोड़ा बहुत, बट
गो प्लीज एलएसपी गो अपने एंड से देता है. गो अपने एंड से एक्चुअली काफी खुद टूल्स भी देता है, तो उन्होंने एलएसपी भी अपने एंड से दिया हुआ है. Hi 42069 by the way. सर किस लाइन में जा रहे हो सर? Cruise 0 I 42069 ओके. एक और बार टाइप करते हैं. ओके. फॉर्मेटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन चलेगा. एग्जिट भी कर सकते. सही है. सही है. सही है. थोड़ा हम फॉर्मेटिंग अगर देख लें तो वो तो नॉर्मल सी वगैरह भी अभी कर रहे होते तो हमें करना पड़ता. ठीक है. अराउंड 55 मिनट्स हो चुके हैं. अभी के लिए हाँ. रेस्ट देते हैं. एक बार अगर कमेंट्स में किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ कहना है अपने दिल की बात. मैंने बाय द वे किसी को गलती से बैन कर दिया. आई थिंक इनका नाम जामियत है. सॉरी. मैं बैन किसी को नहीं करना चाहता. सॉरी. रियली सॉरी एक्चुअली. अगर कोई इनको भाई कैसे इनको अनबैन, क्योंकि बाद में कर दूंगा. अभी के लिए सॉरी कह रहा हूँ. अगर कोई तो इनके सही में दोस्त, बैन कर दिया क्या? अरे गलती से हो गया यार. मैं बाद में सेटअप शेयर करूंगा. इतना मुश्किल था. अगर इनके कोई दोस्त है, तो बोलिएगा कि गलती से नहीं कर दिया मैंने बैन. सॉरी. अरे गलती से किया बैन. सॉरी. क्या बोल रहा हूँ क्या. सॉरी भाई. इतना कुछ आता है मेरे को. स्ट्रीमिंग नया सीख रहा. एनीवेज सॉरी. आराम से वन आराम से. क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जल्दी से. Hi bro, I'm a MERN stack developer looking to learn another language like Java or GoLang or Python. Which one is good to get me a good company? I think जो employed है यहाँ पे उनको पूछना चाहिए. मैं तो unemployed हूँ. मैं सिर्फ थर्ड ईयर हूँ. I will always be unemployed. Credits to Siddharth, मतलब third year में he is already full stack developer and all and Rust developer and all, तो credit is due. See, abhi there's two approaches to take. One is short term, just getting into a company, or one is long term to actually work at a good company where you have, you know, your own space and work life balance to be. If you want to get into company now and you're also a MERN stack developer, I would say get very good at MERN stack first. If you don't use TypeScript, you should like go into TypeScript and all. Use TypeScript in projects. After that, if you want to just have another language, what companies are using these days, Python, more matlab realistic sense mein, Python is a good option. Then Java is also a good option, and then I would recommend GoLang. So that's the hierarchy. Because if you're going to something like TCS, usme they'll teach you .NET framework and all. Usme you'll have to use Java kahin na kahin somewhere. If not that, you'll have to write Python. And GoLang is it's a fairly recent language that's come up. So usme like it will take time basically for companies to use it. So if there's a new project, then GoLang is a good option. But otherwise, Python, Java, TypeScript, whatever. Yeah. Any other question? Yeah. This. Any comment on this? No, perfect. सही बोला. Just एक सेकेंड ना. मैं एक बार. This is the only time I will encourage Python, by the way. Yes. एक और क्वेश्चन है. Is Go case sensitive? Depends where we're using it. Because when we'll make structs and all for the to-do CLI tool, usme we'll basically, it's case sensitive in the sense ki if it's a lowercase, it's a private field. If it's the first letter is uppercase, it's a public field basically. Okay. Some people. Yeah, Python for backend. I think Django and Flask are good frameworks. Yeah, actually बुरी बात नहीं है. Python सीख सकते हैं. By the way, Python multi-threaded भी है. भले मैं कितनी भी मजाक उड़ा दो, लेकिन yeah, it is actually a good language. You can do AI/ML stuff with it. Please don't smile that much. So yeah, we can actually learn it in very small time. हम लोग YouTube, we are doing live stream on YouTube, man. Don't take advice like that on face value. But yeah, do your own research also. Yeah, we're also learning. Yeah, and we don't like. Anyways, figure out for yourself. But yeah, GoLang and Python are pretty good languages if you want to learn backend. Python for backend, Flask. I have tried Flask. Good framework. That's the job. Error handling in Go, solid. It's solid, but it's very annoying. So. Oh. Every line you have to write if error not is equal to nil handle, if error not is equal to nil handle. So. Okay.
but it's good in Please. the it's solid in the sense ki you know where your errors can be thrown. Like JavaScript, we have try catch wala block now. So Hmm. matlab, in a simple function, you don't know where an error can be thrown, but in Go, you know where an error can be thrown, which is, as a developer, it's a good option to have. Okay. Is undefined a value like JS? No, I guess. Go में undefined nil type. nil हम use करते हैं. Nil. Okay. Nil means there is no data, like it doesn't exist, right? हाँ मतलब nil या null का जो पूरा concept है, it's to represent that something doesn't exist. तो it's not कि computer में actually में doesn't exist. It's just saying कि ठीक है, if it's all zero or something, we represent it as null. So it's just a representation कि ठीक है, nil means nothing is there. So as a programmer, you don't have to worry about it. Okay, okay. Yeah, .NET is .NET. bundled with C hash. Yeah, and you know, sane people do not use C hash. So, Okay. hmm. C sharp, by the way, is very similar to Java. Yeah, that's why I don't like it. Why is Go? Why Because is Go? Because why not? why not? Because why not? No, Why is Kubernetes? Because why not? Kubernetes should not be there. Bro, Kubernetes is quite cool, you know. I have made a CRUD application and now I have to scale it to 100 million users, so I need a Kubernetes cluster, by the way. Oh, see, If but so- if step one is getting users. Yes, yeah, I have more microservices in my app than actual users, by the way. Yeah, you guys are Actually, point actually. Django and Flask are good, but won't really recommend from a job perspective. Huh. won't be really recommend, to be honest. I guess this RI, bro, your name, random informative shots. Uh, Interesting. yeah, very interesting. Very interesting. Very And interesting. he also has a logo, random informative shots, bhai. The mehnat. So, Very interesting. yeah, if anybody actually has interest in deploying a Kubernetes cluster using Terraform, uh, Mm-hmm. IA infrastructure as code, I have a GitHub project which you can actually check it out. There I have actually written some boilerplate to how you can deploy any Kubernetes cluster on Google Cloud, by the way, using Terraform and like simple Node.js server if you want. You uh, yeah, okay. um, Skip that. Gonna skip that. Hey, can you mhm. tell me which language is most close to Go? Yeah, go. No, I mean which which language is most close to Go? C, little bit. Imagine if JavaScript and Python had a baby. Yeah. Huh. Okay. Basically. I, I actually felt it was like okay, like in syntax. He asked like in syntax. Hmm. Yeah, Rust was like this only, but yeah, not like this at all. But some little things I felt like that. But I See, guess but you're a true Rust developer when you have pink hair. So, so yeah, I think with C it's like it's simple syntax only. It was simple as I felt because that length function global function was also looking like a Python one only. hmm. वो मैंने tools Anyway, dot length कर दिया था मेरी let me गलती. scroll up if I have any more questions. Sorry, deleted that. जी अरे भाई ये सब क्या बोल रहा है Every यार programming language is everything sponsored. ये But अगर बैन हाँ actually hook me up स्ट्रीम with को him. मोनेटाइज और बैन करवाएगा तो मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं है भाई चैनल उड़ा देगा क्या ठीक है, बट ओके अगर सो सही में वो प्रोजेक्ट के लिए अपने एंड से करना है तो मैं तुम लोग को कनेक्ट कर सकता हूँ. क्या 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 चैट में एक चीज ऑटोमेशन प्रोजेक्ट करके बोला ना. किधर किधर वेर वेर Random informative shorts नहीं for a future automation project. ओके ओके हियर ओके गॉट इट तो चाहो तो तुम दोनों को कनेक्ट करा सकता हूँ. सो ये पीपल इन द कमेंट्स आर योर फ्रेंड्स और व्हाट जीसॉक के ही लोग हैं. जीएसएसओसी ओके हाँ, मैं जीसॉक ऐसे बोल रहा हूँ जैसे गूगल वाले हैं. हाँ भाई आई वाज थिंकिंग मैन भाई भाई
जीसोकल हो गया, ओपनर हो गया No. Nice. So yeah, if there are any questions, we will wrap it up because उतना फालतू टाइम भी नहीं है. We don't have that much फालतू Serious time. questions, मजे वाले नहीं. Yes, कसम भाई क्या मजे ले रहे हो भाई तुम लोग. Yeah, this was supposed to be mostly in English, but yeah, we switched to Hindi, no problem. Oh, So if sorry. there are no further questions, I guess we can wrap this stream. So let me recap what we have discussed. We discussed how Go works. Basically, we have created a small main.go file. We know how to declare variables now, how to instantiate variables, how to insert values into variables. We also learned how to compile a how to compile the main.go file, what is package main, uh, formatting the things, and what else we learned? Loops, and then taking input using at operator to take input, break switch statements, and little bit syntax relating to inbuilt functions of arrays length and how we can push it to. I guess what was syntax to push actually? I don't remember. Append का function. Yeah, append to do equals to append. Yeah, that we learned. And okay then. The next live stream will be, I guess, next Sunday if our guest Shobit is free, or else we'll schedule it. Will you be free on next Sunday? Can we make a stream, or else? Uh, Next Sunday एक Okay, बार check करके बताता हूँ. I check and tell. Most yeah, probably हो ही जाएगा, I think. okay. So we'll meet soon in the second stream where we'll be actually building a CLI tool. Mostly it will involve IO handling and maybe a small HTTP GET request or POST request, which we will use HTTP module of Go, and maybe test that endpoint using a Postman like service. So till then, write your favorite programming language. Happy weekend over. Weekend is over anyways. Go Monday to your college or office, whatever. So thank you Shobit for joining us in the live stream. Thank you, sir. And Thank you. yeah, peace out. Any final words you want to say, or we can end it? Anything? Neo M, by the way. Okay. The name is JS Beta. Ajay.